everyone. So today I discuss the one more concept, that is the how to find out the spatial and spin part of the electronic wave function, because we know that the electrons is nothing but fermions, because the fermions means it obeys the Fermi-Dirac statistics. So Fermi-Dirac statistics means the particles which having the half integral that obeys the Fermi-Dirac statistics. So your electron is the fermions. So according to Slater's determinant for the multi-electronic atom, except the hydrogen, the according to Pauli's exclusion principle also, your overall wave function must be a antisymmetric for the fermions, and for the boson overall wave function is a symmetric. So आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि ओवरऑल वेव फंक्शन for the fermions is must be a antisymmetrical in nature. Now, according to Slater determinant, whatever your wave function that consists of two parts, one is a space part and another one is a spin part. So your total wave function composed of two part, one is a space part और उसको spatial part भी बोलते हैं, and another one is a spin part. Now, in order to get overall wave function must be antisymmetric. अगर मेरा स्पैटियल पार्ट और स्पेस पार्ट अगर सिमेट्रिक है तो मेरा ये जो भी स्पिन पार्ट है वो मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, सो दैट सिमेट्रिक इनटू एंटीसिमेट्रिकल इट गिव्स मी एंटीसिमेट्रिकल. अगर अपोजिट है मतलब मेरा स्पिन पार्ट अगर सिमेट्रिकल है तो मेरा उस केस में स्पैटियल पार्ट मस्ट बी क्या चाहिए, antisymmetric. So just here we discussed the one of the simplest concept, this how to find out whether it is a मतलब space part symmetrical है या antisymmetrical है, और इसके बस नेट में क्वेश्चंस भी रहते हैं. अप टिल नाउ 2 to 3 टाइम्स दे आस्क दिस क्वेश्चन. तो जस्ट आपको इतना याद रखना है, जो भी फर्मियंस होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स दैट ओबेज द Pauli's exclusion principle means overall wave function must be a antisymmetrical, and wave function consists of two part, one is a spatial or space part and another one is a spin part. तो symmetric into symmetric symmetric रहता है, एंटीसिमेट्रिक इंटू एंटीसिमेट्रिक सिमेट्रिक होता है, बट सिमेट्रिक इंटू एंटीसिमेट्रिकल तो आपका ओवरऑल वेव फंक्शन होता है एंटीसिमेट्रिकल. तो सपोज मान लो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स वी कैन अरेंज इन अ नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में. जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं अल्फा हैविंग स्पिन वैल्यू प्लस हाफ, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहता है that we label as a beta and having spin value minus half. So if you do all the permutation combination for these, तो आपका spin part के total 4 combination possible होते हैं. That is 2 electron might be in a upward direction, that is we can say alpha 1 and the alpha 2, मतलब first electron and this second electron both are in upward direction. तो आपके लिए हमने अल्फा अल्फा नोटेशन यूज किया था. Then might be a both are in downward direction, that is beta 1 and beta 2. Then one upward and one downward we always write down in a linear combination. Okay, so we consider alpha 1 beta 2 and one is a we consider plus combination, another one we consider the minus combination, because आपने VBT में मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्वांटम केमिस्ट्री का पढ़ा होगा. देयर आर 2 पार्ट आयोनिक पार्ट एंड कोवेलेंट पार्ट. मींस वी अज्यूम जो भी इलेक्ट्रॉन्स है H2 मॉलिक्यूल है तो फर्स्ट डज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम अल्फा होगा, दैट माइट बी अ बीटा या सेकंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहेगा. सो वी कंसिडर द लीनियर कॉम्बिनेशन, वी नॉट गो इन दैट मच डिटेल. सो हियर अल्फा 1 बीटा 2 एंड अल्फा 2 बीटा 1. अगर एग्जाम में ये भी पूछते हैं प्लस विथ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी पूछते हैं, तो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट रहता है 1/√2. तो आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं तो बेटर, नहीं करते हैं तो जस्ट इट इज अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 इज ओके.
क्योंकि एग्जाम में दोनों वे से पूछा है। एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1/√2 α1 β2 एंड माइनस कॉम्बिनेशन α2 β1। तो उसमें से ये चारों ही हमारे पास पॉसिबल वे है। ओके, जस्ट ये α1 एंड α2 कंसिडर कर दो। तो here α1 α2 β1 β2 and 1/√2 α1 β2. Now symmetrical and anti-symmetrical with respect to what? With respect to exchange of electron. Exchange of electron means what? अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज कर दी 1 2 या 2 1, अगर आपका ओवरऑल वेव फंक्शन एज इट इज रहा तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। मतलब psi1 2, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर दिया फिर भी वो psi2 1 ही रहा तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल वेव फंक्शन है। एंटी सिमेट्रिकल मतलब व्हाट? अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करती हूँ तो अगर आपका वेव फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पिन पार्ट ऑफ दिस, okay, if you're talking about the spin part and spin part having हमारे पास कितने values थे? 4, that is α1 α2 then β1 β2 and then α1 β2 plus α2 β1 and next में था minus α1 β2 minus α2 β1। तो मुझे बताओ अगर मैंने α1 एंड α2 का साइन चेंज कर दिया, मतलब एक्सचेंज कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा? इट बिकम ओके, इट बिकम α2 α1। तो आपका ओवरऑल वेव फंक्शन एज इट इज रहा है, तो ये पार्ट को बोलते हैं सिमेट्रिक। हमेशा याद रखना ये पार्ट रहता है सिमेट्रिक। नाउ β1 β2 का भी फिर एक्सचेंज कर दिया तो क्या होगा? इट बिकम β2 β1। तो ये आगे लिखा पीछे लिखा उससे कुछ अफेक्ट नहीं होता है। सो दिस ऑल्सो गिव्स यू सिमेट्रिक वेव फंक्शन। प्लस अभी मैंने एक्सचेंज कर दिया इलेक्ट्रॉन, 1 को 2 कर दिया, 2 को 1 कर दिया, तो ये पार्ट क्या होगा? α2 β1 प्लस α1 β2। तो विच इज एज इट इज बिकॉज एडिशन है। एडिशन में ये वाली टर्म फर्स्ट लिखी, ये वाली टर्म नेक्स्ट लिखी, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिमेट्रिकल पार्ट। Okay, but if you talk about this, let's see what happened. अगर मैंने α1 and α2 exchange कर दी, so here α2 β1 minus α1 β2. Now these two wave function is not similar. ये दोनों wave function similar है क्या? नहीं है, because here if you want to make both equations similar, हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। सो इट इज α1 β2 minus α2 β1, then and then these two equations are the similar. So इसको हम क्या बोलेंगे कि अगर मैंने एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कर दिया तो हमारा वेव फंक्शन साइन चेंज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। तो हमेशा याद रखना ये जो भी फोर्थ वन है वही सिर्फ एंटी सिमेट्रिकल पार्ट है।
और सिमेट्रिकल पार्ट क्या है, रिमेनिंग 3। सिमेट्रिकल पार्ट इज रिमेनिंग 3। तो अगर हम इसकी स्पिन वैल्यू कैलकुलेट करें तो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस हाफ क्या होता है 1, बीटा 1 एंड बीटा 2 -1, अल्फा 1 बीटा 2 उसकी वैल्यू 0 आती है, बिकॉज वन अप वन डायरेक्शन में, अनदर वन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बट इसकी जो भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहती है, ये तीनों सिमेट्रिकल पार्ट की हमेशा ट्रिपलेट रहती है। ये आपको याद रखना है सिर्फ कि सिमेट्रिकल पार्ट हमेशा ट्रिपलेट स्पिन देता है अकॉर्डिंग टू 2s + 1, एंड एंटी सिमेट्रिकल पार्ट की s की वैल्यू 0 है। आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिपलेट विद ms इज इक्वल टू 0 कौन सा स्पिन पार्ट दिखाता है, तो अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 क्या दिखाता है, ट्रिपलेट विद स्पिन पार्ट 0, और ये 0 और ये क्या दिखाता है, सिंगलेट 0 एंड 2s + 1 से ये क्या दिखाता है, सिंगलेट। तो इसी के बेस आपको नेट में क्वेश्चन रहता है। एंड इफ यू सी अबाउट दी स्पेस पार्ट ऑल्सो, स्पेस पार्ट में भी आपका सेम रहता है, जस्ट इंस्टेड ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 देयर इज अ ऑर्बिटल दैट इज द 1s1 या 2s1 या सिग्मा जी सिग्मा यू लाइक दिस दे आस्क, मतलब प्रोवाइडेड। बट उसमें भी जो आपका प्लस पार्ट रहता है वो सिमेट्रिकल रहता है और माइनस पार्ट क्या रहता है, एंटी सिमेट्रिकल। मीन्स इफ यू सी, अगर मैंने फाई ए मतलब स्पेस पार्ट का लिखा, तो फाई A1 एंड फाई B2 ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिकल स्पेस पार्ट। देन फाई A2 एंड फाई B1 दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट सिमेट्रिकल पार्ट। बट अगर हमें विथ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिखाना है तो 1/√2 फाई A1 फाई B2, अगर ये मैंने प्लस में लिख दिया तो ये भी सिमेट्रिकल बनेगा। अगर मैंने माइनस में लिख दिया ए था तो ये 2 होगा और ये 1 होगा, और ये मैंने माइनस में लिख दिया तो वो क्या बनेगा, एंटीसिमेट्रिक। तो जस्ट आपको यही सिर्फ याद रखना है कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा एंटीसिमेट्रिकल है। तो अल्फा बीटा हम हमेशा अल्फा 1 बीटा 2 लिख दिया तो वो हमेशा प्लस माइनस के टर्म में लिखेंगे, और दो सिर्फ अल्फा है तो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 वो हमेशा सिमेट्रिकल रहता है, प्लस भी सिमेट्रिकल रहता है, और माइनस वाला हमेशा क्या रहता है, एंटी सिमेट्रिकल। बस इतना ही शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखना है, एंड दिस ट्रिक इज सफिशिएंट टू सॉल्व दी क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस। तो देखो हियर what happened, okay, तो ये नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो देखो ये हमें कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने अभी जस्ट 5 मिनट का कंसेप्ट देखा उससे बेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो H2 मॉलिक्यूल दिया है, वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन दिया है psi12 ओके जस्ट अभी psi1 इज इक्वल टू phi एंड सिग्मा, फिर psi रिप्रेजेंट क्या, स्पेस पार्ट, phi represent space part and this sigma represent spin part। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, अगर मैं स्पेस पार्ट का इलेक्ट्रॉन अगर एक्सचेंज करती हूँ तो वो एज इट इज रह रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये क्या है आपका सिमेट्रिकल पार्ट है, मतलब हमारा स्पेस पार्ट क्या हुआ, सिमेट्रिक। तो हमें क्या पूछा है, इसका सिग्मा पार्ट कौन सा होगा, तो हमें ओवरऑल वेव फंक्शन क्या चाहिए रे, एंटी सिमेट्रिकल चाहिए। अगर मेरा स्पेस पार्ट सिमेट्रिकल है तो स्पिन पार्ट मस्ट बी एंटी सिमेट्रिकल, एंड जस्ट नाउ वी सी एंटी सिमेट्रिकल हमारे पास एक ही रहता है, that is alpha 1 beta 2 and alpha 2 beta 1। so this is the 4 marks question, same question asked in a similar type question asked in a next year, triplet state wave function of hydrogen molecule with electronic configuration sigma g1 and sigma u1 having the following space part। okay, ट्रिपलेट वेव फंक्शन है, स्टेट वेव फंक्शन। ट्रिपलेट मतलब हमेशा क्या रहता है रे,
सिमेट्रिक, बिकॉज हमने पढ़ा ट्रिपलेट के लिए 3 है और तीनों के तीनों क्या है, सिमेट्रिक। तो हमें इसका स्पेस पार्ट क्या चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिकल का है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, सिग्मा G1 सिग्मा U1 U2 माइनस सिग्मा U1 सिग्मा G2। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, फॉर H2 molecule in excited state the spin part of the triplet state, हमें spin पूछा है, नॉट स्पेस। spin part of triplet state with ms 0, तो spin part with triplet state and ms value 0 हमारे पास एक ही है, that is alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2। So based upon this concept you can solve such a type of numericals. Thank you so much and all the best.